जी मनमीत सिंह पंजाब फोकस टीवी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MRI ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ट्रीटमेंट बिल्कुल सही मिल रहा वा 2 महीने तो आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की हुई है तो वो फिर रिजल्ट देखणगे तो फिर ही मतलब कि अगों दसणगे ना मेडिसिन घट करनी है या वध या की है। बाकी सारा उन्होंने वधिया ट्रीटमेंट किया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲੱਗਾ? बिल्कुल सही है जिस तरह उन्होंने आम डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी है कि चलो ना गलत वो तो अपनी अपनी सोच है ना कि जे किसी को गलत समझते हैं। कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब को तुम इत्थे आ रहे हो? 2 महीने तो आ रहे हैं क्योंकि मेडिसिन चल रही सी ना तो फिर ट्रीटमेंट ਹੁੰਦਾ कि महीने बाद ਤੁਸੀਂ चेकअप करवा के ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? मतलब कि पता चलिया सीगा कि इस हॉस्पिटल विच ब्रेन दे डॉक्टर मतलब किस तरह नाम इन्हां दा दस्सिया सी फिर इस यानी कि फीस ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ? हाँ जी ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ नहीं ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ? नहीं जी उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं है सानू क्या ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं मैं ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई सी फिर साडे डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने कि उत्थे थे वो डॉक्टर कोल इत्थे आए फिर इन्होंने बहुत चंगी सानू दवाई दी। मैं ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ? हाले 10-15 दिन होए सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत चंगा लगा। ਫੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ नहीं कोई ਫੀਸ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ? ठीक है ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। नहीं कोई प्रॉब्लम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ और किन्ने सन दे विच डॉक्टरी की सी? सर मैंने ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से अपना MS और MCH न्यूरो सर्जरी में किया है और ये ऐसी सीट है कि साल में केवल एक ही स्टूडेंट इस सीट पे आता है और ये मैं पास करके 2001 में अमृतसर आया था, अमृतसर की गुरु की नगरी में सेवा करने और तब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये एपेक्स हॉस्पिटल ये मैंने 2005 में गुरु की कृपा से बनाया था और तब से भगवान की दया से ठीक चल रहा है। यहाँ पर मेरी स्पेशलिटी है न्यूरो सर्जरी जिसमें कि हम ब्रेन और स्पाइन और नर्व्स इनकी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। ब्रेन की हर तरह की बीमारी, रीढ़ की हड्डी में डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, रीढ़ की हड्डी चोट लगने से टूट जाती है
या कोई नाड़ी कट जाती है तो हम लोग उसका इलाज दवाइयों से या फिर ऑपरेशन से करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर मिर्गी के मरीज, सिर दर्द के मरीज, दिमाग की रसौली, दिमाग की नाड़ी फट जाना, अधरंग, कमर के दर्द के मरीज, लकवा मार जाना जिसमें पैरों के अंदर दर्द जाता है, पैर खराब हो जाते हैं, या कई बार चोट लगने से कोई शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, इस तरह के मरीज मेरे पास ज़्यादा आते हैं। सर आपने कोविड-19 में जब हॉस्पिटल को हमने कोविड-19 में भी आपका हॉस्पिटल का दौरा किया गया, कोविड-19 में भी आपने हॉस्पिटल खोला, उस टाइम हम आपके साथ हमारी नहीं मुलाकात हो सकी। आज तो आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ बैठे हैं। हम लोग को ये बताइए कोविड-19 में आपने जैसे कि कितने पेशेंट आते थे, किसी की कोई बहुत उस टाइम तक गरीबी आपको मालूम है, उस टाइम पर बीमारी चली थी, तो कितने के पेशेंट की आपने हेल्प किया? ये जो कोविड-19 शुरू हुआ है, जिसमें स्पेशली लॉकडाउन मार्च से शुरू हुआ है, मार्च 2020 से, उस समय मरीजों को बहुत दिक्कत हुई थी। स्पेशली मरीज जो सीरियस मरीज है, कोई हॉस्पिटल उनको लेने को तैयार नहीं था। उस समय हमने सोचा कि अगर सभी लोग ऐसे करेंगे तो मरीज किधर जाएंगे। तो हमने फिर अपना हॉस्पिटल खुला रखा। हमने अपना हॉस्पिटल एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया। हम लोग पूरे प्रिकॉशन लेते थे, PPE किट पहनते थे। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन बनवाई है। स्क्रीन बनवा के हॉस्पिटल, इस कमरे के अंदर मैंने निगेटिव प्रेशर भी जनरेट करवाया है एग्जॉस्ट फैन लगवा के, और हमने लगातार मरीजों को यहाँ पर मरीजों की सेवा की है। ज़्यादातर मरीज उस समय इस तरह के थे जिनके पास काम काज ना होने के पास पैसा भी नहीं होता था, तो हमें फिर उनके लिए कई बार फ्री OPD करनी पड़ती थी। उनका CT स्कैन छाती का, फ्री एक्सरे करा के हम उनको जितनी मदद अपनी तरफ से कर सकते थे वो करते थे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि कोविड मरीज केवल कोविड से नहीं आते, कई बार मरीजों को अधरंग का दौरा, दिमाग की नाड़ी फटना, दिल का दौरा, इस तरह की बीमारी भी कोविड के मरीजों में कुछ ज़्यादा देखने में मिलती है। उन मरीजों का भी हमें पूरी प्रिकॉशंस के साथ इलाज करना है। मतलब कभी ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया आपकी लाइफ के अंदर जो आपको बहुत क्रिटिकल लगा और आपको भी थोड़ा अपना आपको लगा हुआ महसूस किया मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं? आपकी पूरी लाइफ में अभी जब से आपने डॉक्टरी शुरू की है उस टाइम का कोई आपके पास है? हाँ जी, मेरा तो फील्ड ऐसा है न्यूरो सर्जरी, जिसमें कि ज़्यादातर मरीज बहुत क्रिटिकल आते हैं और कई बार वो इतने होपलेस होके आते हैं कि उनको लगता है कि मरीज बच नहीं पाएगा, और भगवान की दया से और हम लोग की एक्सपर्टाइज से कई बार मरीज बच भी जाते हैं। इसमें एक वाकया मैं बताऊंगा आपको। एक यंग लड़का था 16 साल का, और उसने मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी, विकी विंड एरिया का था, और मोटरसाइकिल चला के वो एक ट्रैक्टर ट्रॉले में लड़ गया। तो उस ट्रॉले में लड़ने की वजह से उसके सिर का आधा हिस्सा ऐसे बिल्कुल बाहर निकल गया, एक आंख भी बाहर आ गई। उसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया था, और वो ऑपरेशन हमारा करीब 8 घंटे चला, और उसके बाद भी उसका बड़ा क्रिटिकल इलाज चलता रहा क्योंकि वो कोमा में चला गया था। पर करीब 1 महीने, सवा महीने की मेहनत के बाद वो बच्चा बच गया, और आज वो पढ़ लिख के अपना नौकरी कर रहा है, काम ठीक कर रहा है। ये बात हो गई, इस बात को 10 साल के करीब हो गया। इसी तरीके से मैं एक बात बताऊंगा कि कई बार ब्रेन हैमरेज के मरीज आते हैं जिनको ये सोचा जाता है कि भाई ये तो बुजुर्ग हैं, अब तो इन्होंने ठीक नहीं होना। तो इसी तरीके से एक हमारे पास आए थे 90 साल के बुजुर्ग। 90 साल की उम्र में कोई भी मरीज में हाथ डालना नहीं चाहता डॉक्टर, क्योंकि उम्र ही बड़ी क्रिटिकल है। उसकी दिमाग की नाड़ी फट गई और उसको दिमाग के ऊपर खून जमा हो गया था। हम लोगों ने उसका दूरबीन से माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशन करके उसका खून निकाला, और वाहेगुरु की कृपा से वो मरीज ठीक होके यहाँ से गया। अब इस तरह के बहुत से मरीज आते हैं जिनका हम लोग को इलाज करना है। ब्रेन ट्यूमर के मरीज आते हैं, रीढ़ की हड्डी के मरीज आते हैं जिसमें पैरों में जो नाड़ियाँ जाती हैं वो दब जाती हैं, नाड़ियाँ काम करना बंद कर देती हैं। इस तरह के लिए भी एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो मरीजों को मदद होती है। अच्छा, हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से मरीजों को बिना ऑपरेशन के भी आप दवाइयों से, स्पेशल इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। तो सर एक छोटी सी बात आपसे पूछनी थी कि आपके हॉस्पिटल को चलो बने काफ़ी टाइम हो, उसके अंदर आपके क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या आपके पास एम्बुलेंस कितनी एम्बुलेंस है, कभी इमरजेंसी में क्या लोग होते हैं, और आपके पास स्टाफ कितना है, और कौन कौन से डॉक्टर आपके पास है? सर, ये हॉस्पिटल मेरा अब 2005 से चल रहा है, 15 साल से ऊपर हो गए हैं। इसको मैंने मल्टी स्पेशलिटी और प्राइमरीली न्यूरो एंड क्रिटिकल केयर के लिए डेवलप किया है। इस हॉस्पिटल में हमारे पास ऐसी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर MRI,
सीटी स्कैन, जो कैथ लैब वो मशीन है जो हार्ट में एंजियोग्राफी वगैरह के लिए काम आती है। वही कैथ लैब से हम ब्रेन की नाड़ियों, फटी हुई नाड़ियों का भी रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी न्यूरोफिजियोलॉजी लैब है, जिसमें कि एपिलेप्सी या इससे रिलेटेड कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस करने में हमें आसानी होती है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, इकोकार्डियोग्राफी है। एम्बुलेंस हमारे पास 2 हैं। एक तो उसमें आईसीयू एम्बुलेंस होती है जिसके अंदर हम किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। स्टाफ हमारे पास सारा वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड स्टाफ है। डॉक्टर्स की हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो, मेरी वाइफ ENT स्पेशलिस्ट है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सभी तरह के डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। और हम लोग वी आर कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग एवरी सीरियस केस। जैसे कोई बहुत गरीब आदमी जिसके पास कोई पैसा ना हो, या ऐसे कोई किसी की है, ऐसा कोई आपके पास आया हो जिसकी आपने हेल्प की हो? हाँ जी, ये जो कोविड है इसमें ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं और बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। मैं तो मोदी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्कीम चलाई है आयुष्मान भारत करके, सेहत सेवा स्कीम, जिसमें कि कोई भी मरीज हमारे यहाँ आके कैशलेस आके इलाज करा सकता है। और अगर कभी मरीज को इलाज की ज़रूरत है और उसके पास पेमेंट नहीं है, तो जहाँ तक हो सकता है हम भी उनकी सेवा कर और मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप कुछ हमारे दर्शकों, पंजाब को कुछ टीवी देख रहे दर्शकों को या अमृतसर की पूरे रहने वालों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कोविड की बीमारी है आजकल जो बहुत फैल रही है। इसके बारे में मेरा संदेश ये है कि जिसको ये बीमारी हो जाती है वो इसका दुख जानता है, जिसको ये नहीं होती वो सोचता है कि ये बीमारी कुछ है ही नहीं। और इस बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी ठीक हो जाए, हो सकता है कि कम से कम उम्र का 25-30 साल का आदमी भी, भगवान न करे, पर इसकी डेथ हो सकती है। तो इसमें प्रिकॉशन बहुत लें। मास्क, हमेशा मास्क लगा के रखें। मास्क आपका पहला बैरियर है। जब भी मास्क आपको उतारना है, इसको कान से पकड़ के उतार के उसको डिस्कार्ड कर दें। ये तो मेरी कोविड के बारे में सबके लिए राय है। जहाँ तक मेरा फील्ड है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा ऐसी चीज़ है जिसको हम बचा सकते हैं, पर जो मृत्यु के लिए भी और लोगों को अपाहिज करने के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको, जो 2 व्हीलर्स वाले हैं उनको हमेशा हेलमेट पहनना है। जो कार है, कार को स्पीड लिमिट के अंदर चलाना है, स्पीड हमेशा बेल्ट लगा के चलाना है। केवल आगे वाले लोग ही, पीछे जो बैठे हैं उनके लिए भी बेल्ट उतनी प्रोटेक्शन देती है जितना आगे वालों को देती है। अच्छा, और जो बीमारियां हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत भ्रांति है, जैसे कि ये मिर्गी की बीमारी है जी, ये किसी हवा लगने से हो जाती है, कोई भूत प्रेत की बीमारी है, ऐसा नहीं है। इस बीमारी के लिए प्रॉपर मेडिसिन, साइंटिफिक मेडिसिन हैं जो कि आजकल प्रूव हैं और जिससे हजारों लाखों मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके लिए कभी भी वो जूता सुनाना, ये जो हम सुनते हैं, ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी किसी को मिर्गी हो, किसी भी तरह की मिर्गी हो, इमीडिएटली आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उसमें उसका बचाव हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का दर्द बड़ा ही कॉमन है आजकल। इतना तेज ट्रैफिक चलता है, झटके लगते हैं रीढ़ की हड्डी पे, आदमी सारा दिन काम करता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण है डिस्क स्लिप हो जाना। 100 में 90 मरीज स्लिप डिस्क के दवाइयों से, वर्जिश से, ट्रैक्शन वगैरह लगा के ठीक हो जाते हैं। केवल 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनको किसी तरह का इंटरवेंशन करना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई भी बीमारी हो तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। सो थैंक यू। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੰਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮਲਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਅਪੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਐਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, MRI ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਰੇਟ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।